Hello, friends, and good morning to everyone. And this is Vijay Singh. I hope you are well at home and good, healthy, and wealthy. So now I'm going to discuss with you redemption of debenture. This is a six session or lecture of that particular, and that particular session I discussed with you redemption by the conversion. So redemption by the conversion in that particular case I discussed with you. So I hope you understand. Let's move towards. So redemption by conversion is what? So basically, as I stated earlier, the debenture can also be redeemed by converting them into the shares or new debentures. ठीक है, जब भी हम डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर देते हैं न्यू शेयर्स में या न्यू डिवेंचर्स में, तो दैट इज नोन एज अ debentures can also be redeemed as converting them into the new share debenture. So it is redemption by conversion. And debenture holder find that offer is beneficial to them, then they will take the advantage of this offer. अगर डिवेंचर होल्डर को लगता है कि वो बेनिफिट ले सकते हैं तो उसको लेते हैं और उसको ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं. न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर में बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम आल्सो. And it may be noted that no debenture redemption reserve is required. यहाँ पर DRM जो DRR अकाउंट होता है उसकी बनाने की जरूरत नहीं होती है in case of convertible debentures because no fund are required for redemption. और यहाँ पर किसी तरह के फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं होती है. तो बेसिकली डिवेंचर may be redeemed by converting them into equity share as per the terms of issue. And they are company and act prohibited by non-convertible portion of the debenture also there. So by be redeemed by conversion, and this implies that the debentures will redeem by conversion only if they are issued at such condition. No such cash outflows will take place. So there is no requirement of creating debenture redemption account and when debenture are redeemed by the conversion, and debenture holder have to be applied for the same. So redemption by conversion may have some entries. The following conversion is made recorded in the following entries. The first is debentures are redeemed at par. When the debentures are redeemed at par, then we make the entries. आप देख रहे हैं यहाँ पर. First thing, for amount due to on debenture holder, amount अगर हम due कर रहे हैं तो debenture account debit. तो debenture holders account हमने amount इस पर due कर दिया है, ठीक है, debentures का. When debentures are converted into shares, अगर इनको shares पे at par अगर हम redeem कर रहे हैं तो debenture account debit to share capital हम इसको जो है वो convert हो जाएंगे with nominal value of debenture, जो भी amount है nominal value की डिवेंचर्स की. थर्ड थिंग आपको ध्यान रखना है, डिवेंचर आर कन्वर्टेड इनटू शेयर एट डिस्काउंट. अगर डिस्काउंट पे होते हैं तो ये एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, यहाँ पर डिवेंचर की जगह क्या आ जाएगा, शेयर्स आ जाएगा. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, नो भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अगर वो यहाँ आएगी तो शेयर कैपिटल है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स की वैल्यू वो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके. ठीक है, व्हेन डिवेंचर आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे हम इनको इश्यू करते हैं तो क्या होता है, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू पे आएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है, जो डिफरेंस है इन दोनों का वो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है, तो इस तरीके से जो रिडेम्पशन ऑफ कन्वर्जन है वो पहली कंडीशन जिसको रिडेम्पशन एट पार हम कह रहे हैं वो किया जा सकता है. While calculating number of share to be issued, face value of redeemable debenture is divided by the price of shares. ठीक है, जब हम number of shares कितने इशू करने हैं इसको फाइंड आउट करना है तो face value of redeemable debentures को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ शेयर से. ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो then issue price of share of ₹10 will be 10. If the issue at par, it will be 10 plus 2. If it issued 20% premium, it will be 9 minus 1, it is 9. तो इशू 10% डिस्काउंट. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो जो भी उसकी वैल्यू है उसको निकालने के लिए हमें पहले फेस वैल्यू जो प्राइस शेयर्स की वैल्यू वो भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी. देन डिवेंचर आर रिडीम एट प्रीमियम थ्रू द कन्वर्जन इनटू शेयर. जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हो जो कन्वर्जन इनटू शेयर होता है. अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर अकाउंट डेबिट विद एनईवी नेट वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट विद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट. ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री हम यहाँ पर बना सकते हैं. दूसरी एंट्री यहाँ बनेगी फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ डिवेंचर बाय इश्यूइंग ऑफ शेयर्स एट पार. तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, अगर नहीं है तो डायरेक्ट शेयर कैपिटल हम लिख देंगे. ठीक है, कई बार प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं. फॉर डिस्चार्जिंग डिवेंचर्स बाय इश्यूइंग ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जब भी हम डिवेंचर्स को शेयर्स एट प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्चार्ज करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। इसके अलावा समटाइम्स अटेंशन आपको रखनी है कि इज ड्रॉन टू द फैक्ट दैट व्हेन द डिवेंचर्स वर इशूड एट डिस्काउंट in the past and now the redemption of those debenture is being done by means of conversion। ठीक है, अगर हमको पहले डिस्काउंट में इशू कर चुके और अब इनका डिवेंचर को हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो देयर में भी अराइजिंग फॉलोइंग दो पॉसिबिलिटी आपके अराइज हो सकती हैं। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हैज बीन राइट ऑफ बिफोर कन्वर्जन, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है वो राइट ऑफ तो नहीं हो चुका है कन्वर्जन से पहले, और दूसरा है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हैज नॉट बीन राइट ऑफ एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन डिवेंचर का जो कन्वर्जन है वो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन नहीं होता है। तो इन द फर्स्ट सिचुएशन कन्वर्जन एंट्रीज कैन बी पास एट द सिचुएशन डिमांडेड इन द मैनर स्टेटेड अबव, जो भी आपका तरीका उसके हिसाब से हमने पहले भी आपको बताया कैसे राइट ऑफ करना है। एंड दूसरी कंडीशन है व्हेन डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हैज नॉट बीन राइट ऑफ, अगर राइट ऑफ नहीं हो रही है ऑफ बिफोर कन्वर्जन, देन कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। सेक्शन 79 इट इज एसेंशियल दैट द अंडरराइटन ऑफ द डिस्काउंट ऑन डिवेंचर मस्ट बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर मस्ट बी क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पासिंग कन्वर्जन एंट्री ऑफ फॉर रिडेम्पशन। जब भी हम रिडेम्पशन का कन्वर्जन करेंगे तो उस समय डिस्काउंट ऑन डिवेंचर मस्ट बी क्रेडिटेड, ये ध्यान रखना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। अर्जुन प्लास्टिक लिमिटेड रिडीम 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। 1000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक है, कितने हो गए 10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज के आपके डिवेंचर यहाँ पर हो जाते हैं by converting them into 1 लाख रुपीज के डिवेंचर, 1000 into 100 है तो 1 लाख रुपीज आपके डिवेंचर अमाउंट वैल्यू, कन्वर्टिंग them into इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए के शेयर्स इक्विटी शेयर में इसको कन्वर्ट किया एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2.5 पर शेयर। ठीक है, 2.5 पर शेयर डिवेंचर जो है प्रीमियम पे इनको कन्वर्जन किया है। द कंपनी आल्सो रिडीम 500 डिवेंचर बाय यूटिलाइजिंग 50,000 आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बाकी 500 डिवेंचर्स को उन्होंने जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट यूटिलाइज करते हुए डिवेंचर्स को रिडीम किया है। तो गिव द नेसेसरी जनरली, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो 1000 डिवेंचर्स है 100 रुपीज का ईच कन्वर्टिंग करना है, तो 15% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट आपने कर दिया, तो ये कन्वर्जन की एंट्री है। देन डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 80,000, कितने रुपए का है, ठीक है 10 रुपए का एक है, 500 रुपए के हिसाब से हम जाए तो हमारे यहाँ 1000 की जो डिवेंचर्स थे केवल इन्होंने इशू किए हैं 800 डिवेंचर। ठीक है, ये कहा नहीं है कन्वर्टिंग शेयर्स एंड ₹10 ईच और प्रीमियम पे भी 2.5 पैसे आ जाएगा, प्रीमियम है तो 20,000 का प्रीमियम हो गया। 1 लाख के डिवेंचर है, यहाँ पर 1 लाख है तो इसको हमने कन्वर्ट किया है, तो अगर हम 1 लाख का 25% निकालेंगे तो 20,000 रुपये होता है। 20,000 रुपये आपके प्रीमियम हो गया और 80,000 रुपये आपकी यानी कि इक्विटी शेयर हो गया, यानी 800 इक्विटी शेयर जो है हो गए आपके 10 रुपए के एक के हिसाब से, समझ आया। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट है कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू है जो हमने डिवेंचर होल्डर को देनी है, तो 1 लाख में से केवल 25% यानी कि 2.5 पर शेयर की बात हो रही है, तो अगर हम शेयर की बात करें 800 इक्विटी शेयर है तो लगभग आपका 20,000 रुपये की प्रीमियम हो जाएगा और 80,000 की आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 आपका बना। इज ऑफ 800 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹2.5 पर शेयर। अब क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि हमने इसको टू रिडेम्पशन DRR जिसको कहते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से पैसा ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी अकाउंट, प्रॉपर्टी एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया 50,000 रुपये, फिर इसको डिवेंचर होल्डर को हमने पे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 50,000 रुपये, देन डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट और बैंक उनको पे कर दिया। तो 500 डिवेंचर्स का जो पैसा है वो हमने यहाँ से लेकर इनको पे कर दिया। तो इस तरीके से भी आप जो है 2 तरह के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन भी यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, 100 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10,000 रुपये हो गए। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट पे इशू की, कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। सो 10% प्रेफरेंस शेयर में 100 प्रेफरेंस शेयर में इनको कन्वर्ट करना है और 25% का प्रीमियम है। द डिवेंचर वर कन्वर्टेड एट द ऑप्शन ऑफ द डिवेंचर होल्डर बिफोर द डेट ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर इसकी एंट्री। 12% डिवेंचर अकाउंट 10,000 रुपीज,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट पे आपने इशू किए थे तो 1000 10% डिवेंचर जो थी वो डिस्काउंट थी, आपके यहाँ दिख रही है, ठीक है। ये 12% डिवेंचर 100 रुपये, डिस्काउंट ऑफ 10% वर कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। 10% डिस्काउंट होगी 1000 टू डिवेंचर होल्डर 9000 आपने इसको पे किया। तो एक्चुअल में डिवेंचर होल्डर को कितना मिला 9000। तो 9000 है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर आपने दिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10% इसमें प्रीमियम भी था। तो अगर हम 9000 का 10% निकालते हैं, नहीं इसमें 25%, सॉरी 25% प्रीमियम, तो 25% के हिसाब से जो है 9000 का 25% इन्वॉल्व था, ठीक है। तो कुल जो है 1800 रुपये आपका इसमें आ जाएगा। तो 1/4 आप इसको कर लेंगे तो 1800 रुपये आपका जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 125% देखेंगे। तो 9000 का जो है आप निकालना चाहें तो यहाँ पर 9000 क्या है 150%, इसको 25 करें तो 125 इंटू 25/125 करें तो देन वी गेट द दिस। तो एक 1800 रुपीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, 12% डिवेंचर ऑफ ₹500 ईच वर कन्वर्टेड इनटू 15% डिवेंचर्स एंड ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 12% डिवेंचर थे 500 रुपये के एक था, जिसको 12-15% डिवेंचर में 100 रुपये के एक में डिवेंचर कन्वर्ट किया। तो द न्यू डिवेंचर वर इशूड एट डिस्काउंट, नए डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया। सबसे पहले 12% डिवेंचर हमने देखेंगे 50,000 रुपये, डिवेंचर होल्डर अकाउंट 50,000 बीइंग 12% 100 डिवेंचर्स ऑफ 500 इशूड ड्यू फॉर कन्वर्जन, ड्यू कर दिया कन्वर्जन के लिए। देन डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 50,000, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट कितने थे 12,500 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया जो नया वाला था। टू डिवेंचर 15% डिवेंचर अकाउंट 62,500 रुपये। तो यहाँ पर आप रीडिंग 626 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। 20% डिस्काउंट पे आपने इसको इशू कर दिया। कुल मिला के जो है आपके इतने डिवेंचर हुए फॉर कन्वर्जन ऑफ 12% डिवेंचर्स, जो पुराने डिवेंचर्स थे उनको कन्वर्ज करने के लिए आपने ये किया। देन थर्ड कंडीशन, issued 500 10% debenture of ₹100 each at discount 10%, redeemed at premium of 5%। सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट 45,000 आपने किया, बीइंग एप्लीकेशन मनी 500, 10% डिवेंचर ऑफ 90 रुपीज के हिसाब से आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। 10% जो है किस पे गया था, डिस्काउंट पे गया था। तो 90 रुपीज के हिसाब से आपको यहाँ पर 500 डिवेंचर्स का 45,000 आपको मिल जाएगा। देन डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो लॉस हुआ वो कितना हुआ। देन टू डिवेंचर, क्योंकि प्रीमियम पे आपने इसको फिर रिडीम किया है, ठीक है। तो प्रीमियम पे रिडीम किया, कितना प्रीमियम आपने दिया है इसमें 5% प्रीमियम है। तो 5×5 ठीक है 2500 रुपये का प्रीमियम हो गया, प्लस यहाँ पर जो लॉस हुआ 5000 का यहाँ लॉस हो गया डिस्काउंट के रूप में, दोनों मिला के कितना होगा 7500। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 7500 रुपीज टू 10% डिवेंचर अकाउंट 50,000, ठीक है। जो फेस वैल्यू थी वो 50,000 आ जाएगी। प्रीमियम 2500 रुपीज बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर कन्वर्जन का कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन कॉल मी एंड आस्क मी।